Hello dear students, I hope you are enjoying my online classes. Today's lecture is the second lecture on second chapter of third unit for class 11th, that is friction. In first lecture we studied about origin of friction and classical view, modern view, reason of sliding friction and reason of rolling friction, etc. This lecture we will continue ahead with the topics, and the first topic of today's lecture is laws of limiting friction. There are four laws of limiting friction. The first law states that force of friction is directly proportional to normal reaction. And consider if this is a mass which is placed on some surface, then its weight mg is going to be downward direction. Normal reaction R must be equal to mg. Let us say mu is the coefficient of friction. So from where this mu came into picture, it came from this relation. As force of friction is directly proportional to normal reaction, F is equal to mu R. Mu is the constant of proportionality and known as coefficient of friction. It's a unitless number which determines how much friction is there, and we can calculate force of friction if we have the knowledge of mu along with the mass of object, because we can calculate normal reaction by mass. So F is equal to mu R is your formula for force of friction. This is known as first law of limiting friction. According to second law of limiting friction, up to limiting friction object is not coming in motion actually, which means the force of friction is balancing the applied force. Like static friction is a self-adjusting, self-balancing force. In the same manner, limiting friction is a self-balancing force, as object will not come in motion. That is known as second law of limiting friction. The third law of limiting friction states that limiting friction is independent of area of contact. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि if you are having a mass m1 connected to another mass m2 and you place them on a table and you tie them with a string and a pulley system, and you are having some mass in pen, say you are having capital mg force downward, this mass is capital M, and you are balancing the force of friction of these two masses, so that the total force of friction here is F1 plus F2. Then according to third law of limiting friction, friction force is independent of area of contact. जो force of friction है वो area of contact पे depend नहीं करता. अगर आप इसके सेकंड सिनेरियो में अगर आप मास m1 के ऊपर मास m2 रख देंगे ऐसे, और फिर सिर्फ यहाँ से इनको फिर एक सेम स्ट्रिंग और पुली सिस्टम के थ्रू, when you will try to find the force of friction by putting same capital mg, you will find that same force is required for moving these two masses comparing to when these two masses were placed on table at different positions. So what we are observing in this, that area of contact in m1, apparent area of contact is less than apparent area of contact m1 and m2. ये डबल है एक तरीके से, अगर हम सेम साइज लें, और ये सिंगल, अगर ये a और ये a है तो ऊपर apparent area of contact 2a है और नीचे apparent area of contact a है, but we are having same friction. अब हमें जो यहाँ friction मिलेगा वो इक्वल होगा F1 plus F2. So that is known as your third law of limiting friction. And the last, fourth law of limiting friction. Fourth law of limiting friction states that the force of friction also depends on limiting friction force depends on nature of materials between which we are calculating friction. यानी कि आपका रबड़ का फ्रिक्शन
ज़्यादा होता है रोड के ऊपर कंपेयरिंग टू आयरन के, तो इसलिए हम रबर टायर यूज़ करते हैं, उनका फ्रिक्शन ग्रिप ज़्यादा है उनकी। तो इसका मतलब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो आपका नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। तो मैंने आपको 4 लॉज बताया लिमिटिंग फ्रिक्शन के। सबसे पहला मैंने आपको बताया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन है। दूसरा मैंने आपको बताया कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तीसरा मैंने आपको बताया कि फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। और चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमने डिफाइन कर दिया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन का, सेकंड टॉपिक। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज द रेशियो जो F इज इक्वल टू म्यू आर इक्वेशन से हमने डिफाइन किया है, और म्यू इज इक्वल टू F बाय आर होता है। नेक्स्ट एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको समझे ध्यान से। एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज में क्या रिलेशन है, उनमें हाउ डू दे आर कनेक्टेड, so that is also very important. So second topic जो भी हम पढ़ रहे हैं that is angle of friction. Let us say we represent it by theta. What is angle of friction? Consider this carefully. You are having a mass m which is placed on a surface. Mass is m, and the gravitational weight component mg will be working downward, vertically downward, and the normal reaction will be there vertically upwards. R is equal to mg. So if we try to move it in forward direction, then force of friction will work in backward direction, and let us represent it by capital F, and that is going to be mu R, that is mu mg. Okay, so force of friction is mu mg. As you are trying to move it in this direction, let us say ये आपका applied force है, तो force of friction mu mg इस direction में होएगा, नॉर्मल रिएक्शन आपकी वर्टिकली अपवर्ड होगी। अगर हम नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का रिजल्टेंट लें, इफ वी टेक द रिजल्टेंट ऑफ force of friction and normal reaction, then angle between this resultant and normal reaction is known as angle of friction. Okay, what is angle of friction? Angle of friction is the angle between resultant of normal reaction and force of friction, which is represented by red color. So angle of friction is the angle between resultant of नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट है उसके और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो एंगल है वो आपके पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। इसके साथ ही अगर मैं आपको एंगल ऑफ रिपोज के बारे में बताऊं, या फिर एंगल ऑफ स्लाइडिंग भी जिसको हम बोलते हैं, तो एंगल ऑफ रिपोज क्या है, आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है और उस इंक्लाइन प्लेन में लेट अस से कि अल्फा एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल है जो आपने एडजस्ट किया, जिस एंगल पे अगर आपने कोई मास, कोई ऑब्जेक्ट अगर आपने प्लेस किया हुआ है इंक्लाइन प्लेन पे, कोई बॉक्स आपने प्लेस किया हुआ है, तो इट विल जस्ट बिगिन टू स्लाइड, इट विल बी जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। आपने इसके लिमिटिंग फ्रिक्शन को बैलेंस किया ग्रेविटी के कंपोनेंट से, तो जिस एंगल पे ये आपका बॉक्स स्लाइड होना जस्ट स्टार्ट होएगा, उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज ऑन इंक्लाइन प्लेन ऑन विच वी आर हैविंग अल्फा एंगल। तो आपको पता है कि जो ग्रेविटी का कंपोनेंट है डाउनवर्ड डायरेक्शन, वो आपका होगा mg साइन अल्फा, क्योंकि इसका जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा, दैट इज mg। और अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये लाइन मेरी स्लोप के परपेंडिकुलर है और ये mg वाली लाइन मेरी इसके परपेंडिकुलर है, तो जो एंगल दो लाइनों के बीच में होता है वही एंगल उनकी परपेंडिकुलर्स के बीच में भी होता है। तो अगर ये अल्फा है और ये मेन वेक्टर है mg, तो ये वाला कंपोनेंट हमारा हो जाएगा mg कोस अल्फा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से 90 डिग्री पे हमारे पास mg साइन अल्फा कंपोनेंट है, जो अलोंग द स्लोप एक्ट करेगा, ग्रेविटी का कंपोनेंट, वेट का कंपोनेंट। तो जो आपकी नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन जो है आपकी सरफेस से परपेंडिकुलर r, दैट इज गोइंग टू बी mg cos अल्फा।
तो ऐसा इस पॉइंट पे फिर आपका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो ऊपर की तरफ है, क्योंकि जो स्लोप है वो बॉक्स को नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है, ग्रेविटी का कंपोनेंट, एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज वर्किंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये आपके पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास म्यू आर, दैट इज म्यू एम जी कोस अल्फा। तो जहां आपका ये ग्रेविटी वाला जो कंपोनेंट है एम जी साइन अल्फा, ये जब आपके फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वाले कंपोनेंट को म्यू एम जी कोस अल्फा को बैलेंस करेगा, उस पॉइंट पे आपको एंगल ऑफ रिपोज मिल जाएगा। इफ यू विल लेट मी डू द मैथमेटिक्स हियर, if you will compare these two equations, then you can write it like this: mu mg cos alpha is equal to mg sin alpha। m से m हमारा कैंसिल हो गया और हमारे पास हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए। अगर मैं cos को उधर डिवाइड में ले जाऊं, g से मेरा g कैंसिल हो गया, तो माई म्यू इज इक्वल टू साइन अल्फा बाय cos अल्फा। साइन अल्फा बाय cos अल्फा मेरा बन जाएगा टेंजेंट थीटा। सो म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। तो इस तरीके से मैंने देखा कि ये जो मेरा अल्फा है वो मेरा है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज या फिर एंगल ऑफ स्लाइडिंग आई कैन कैलकुलेट यूजिंग द रिलेशन म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। ये हमने एंगल ऑफ रिपोज कैलकुलेट किया, ठीक है। ये सारा पोर्शन जो हमने कैलकुलेट किया ये एंगल ऑफ रिपोज कैलकुलेट किया। अब हमने जो अभी अभी डेफिनेशन पढ़ी कि जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वो एंगल है नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के रिजल्टेंट के बीच में। तो इसी के ऊपर अगर हम भी अपना ध्यान दें यहाँ पे, तो हम देखते हैं कि जो ये वाला कंपोनेंट है हमारा इधर, ये कंपोनेंट इसके इक्वल होएगा हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के। तो ये वाला कंपोनेंट हमारा होएगा म्यू एम जी, ओके। और ये वाला जो कंपोनेंट है ये हमारी नॉर्मल रिएक्शन है, तो दैट इज एम जी। अब इस वाली ट्रायंगल में लेट अस से द नेम ऑफ दिस ट्रायंगल इज ए बी सी। इन दिस ए बी सी ट्रायंगल इफ आई विल आस्क यू कि मुझे बताओ टेंजेंट थीटा आप कैसे लिखोगे, तो आप टेंजेंट थीटा को लिखोगे परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर जो है यहाँ पे वो हमारे पास ए बी है, ए बी हमारा परपेंडिकुलर है और बी सी हमारा बेस है। तो आप लिखोगे ए बी बाई बी सी दैट इज म्यू एम जी ए बी बाई बी सी दैट इज एम जी। तो एम जी से आपका एम जी कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट द रिलेशन टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू म्यू। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो आपके एंगल ऑफ फ्रिक्शन वाला रिलेशन आया है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू म्यू, और वही रिलेशन आपका एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग के ऊपर आया है टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू म्यू। तो यहाँ से आपको एक इंपॉर्टेंट बात पता चलती है दैट एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये दोनों एंगल की वैल्यू सेम ही आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, टेक अ लुक हियर।